اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے۔ مہندی کے روز لڑکیاں خود اسے ساتھ لے جانے کے لیے آئیں، مگر اس نے کہہ دیا میری طبیعت بڑی خراب ہے، دوپہر کو بخار بھی تھا، میں اتنی دیر بھلا کہاں بیٹھ سکوں گی؟ اور اس جھوٹ پر استانی جی نے نواسی کی جانب حیرت سے دیکھا۔ فجر، تو نے غلط بیانی کیوں کی پتر؟ لڑکیوں کے جانے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ بس نانی جی، میرا ان ہنگاموں سے جی گھبراتا ہے، اگر میں وہاں چلی جاتی تو بھی بیٹھ نہ سکتی، فوراً واپس آ جاتی، بس اسی لیے گئی ہی نہیں۔ اللہ خیر کرے، مجھے تو اب تیری فکر ہی لگ گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ حویلی کی پرانی بوڑھی ملازمہ چلی آئی اور اس کے پاس آ بیٹھی۔ فجر کا سر جھک گیا، وہ سمجھی خرانٹ بڑھیا بھی افسوس کا اظہار کرنے چلی آئی ہے۔ میں تمہارے لیے ملک مہروز کا پیغام لائی ہوں، بڑی بھی رازداری کے عالم میں بولی۔ فجر چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی، بات غیر متوقع تھی۔ انہوں نے کہا ہے میں نے وہ رشتہ ہی ختم کروا دیا نخرے والی، جس کی عزت ہونے کا تجھے دعویٰ تھا، اب سنا کیا حال ہے؟ فجر کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ دکھ، شدید دکھ، تو یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ ادھر وہ جہاندیدہ کہہ رہی تھی، چھوٹے ملک نے بتایا تو نہیں، پر میں سب جان گئی ہوں، مان لی ہوتی تو نے اس کی بات تو اتنا بڑا نقصان تو نہ ہوتا۔ جاؤ، چلی جاؤ، اب مت آنا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ جاتی ہوں، لیکن اگر انہوں نے بھیجا پھر ضرور آؤں گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے چھوٹے ملک پر، خدا کی مار، ذلیل ہوگا ایک روز۔ السلام علیکم۔ اس خوبصورت سے ناول کا نام ہے بربادی دل کے مرثیے۔ تو چلیے پھر اس ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ سامنے پکی سڑک سے ذرا فاصلے پر کچا راستہ تھا، اور یہ راستہ بیلے کی سمت جاتا تھا۔ بڑے گھنے درخت تھے ادھر، اور بل کھا کر جب یہ کچا راستہ ان میں گم ہوتا تو پھر گھوڑی کی ٹاپوں کی آواز ہی رہ جاتی، سوار اور سواری کو سبزہ نگل لیتا۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہی تھا، اسے سوار دکھائی نہ دیتا تھا، پر ٹاپوں کی آواز بتاتی تھی کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ موڑ ختم ہوا، وہ سیدھے راستے پر تھا، اور اب سبزہ نہیں، گرد اسے اپنے حصار میں لے چلی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ذرا اور قریب ہوئی تو وہ کالی گھوڑی پہچان گئی، اور پھر سوار بھی صاف دکھائی دینے لگا۔ تب استانی جی کے شریف النفس نواسی کا دل جیسے اصل رفتار بھول ہی گیا۔ وہ قریب آ رہا تھا، اور قریب۔ فجر کی ایک پل کو بھی آنکھ نہ جھپکی تھی۔ شکر ہوا کہ مہروز کے سر پر آ پہنچنے سے پہلے وہ سنبھل گئی، اور راہ چھوڑ کر پرانے کنویں کی منڈیر کے قریب کھڑے پیپل کی اوٹ میں آ گئی۔ مہروز ملک، یہ نام جانے کب دل کی دھڑکن ہوا، کب آنکھوں میں بسا۔ اب تو وہ یہ سوچ سوچ کر کانپ جایا کرتی تھی کہ اگر کسی نے کھوج لیا تو کیا ہوگا؟ استانی جی کے برسوں میں بنی عزت اور لمحوں میں خاک ہو جائے گی، سارا گاؤں انگلیاں اٹھائے گا، اور شہید نانا کی نواسی کی کہانی ہر گھر میں سنی جائے گی۔ جب بھی رات کو وہ خواب میں چلا آتا، پھر دوبارہ اسے نیند ہی نہ آتی، کروٹیں بدل بدل کر تھک جاتی، اور کبھی جو چارپائی کے چلچراہٹ سے نانی کی آنکھ کھل جاتی تو وہ ایک ہی بہانہ بنا پاتی، پیاس لگ رہی ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، اسی لیے پڑی کروٹیں بدل رہی ہوں۔ مہروز ملک علاقے کے بڑے ذمہ دار ملک نواز کا چھوٹا بیٹا تھا، اور لاڈلا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ خوبصورت تھا، یعنی آج کے لاڈ اٹھائے جاتے تھے اس کے۔ سنا تھا شہر میں پڑھتا ہے، اب اللہ جانے کیا پڑھتا تھا۔ بہرحال گاؤں میں تو اس کی بھی اتنی ہی عزت تھی جتنی کہ اس کے نیک دل باپ ملک نواز اور بڑے بھائی ملک منور کی۔ مہروز کبھی کبھاری گاؤں آتا تھا، اور یہ وقت بھی بیلے میں شکار کھیلتے یا پھر تصویریں بناتے گزار دیتا۔ کیمرہ اکثر اس کے کاندھے پر لٹک رہا ہوتا تھا، اور گاؤں کی لڑکیوں کو یہ تصویروں والی مشین بڑی اچھی لگتی تھی۔ فجر کا حویلی آنا جانا کوئی بہت پرانی بات نہ تھی، اور تو جب ملک نواز کی بڑی بیٹی نبیلہ کی شادی ہو گئی تو چھوٹی شکیلہ تنہائی سے گھبرا کر استانی جی کے چھوٹے سے گھر میں کڑھائی بنائی سیکھنے کے لیے آنے لگی، کہ پورے گاؤں میں ایک استانی جی کا گھرانہ ہی تو ایسا تھا جو دولت مند نہ ہونے کے باوجود بہت عزتوں والا تھا۔ یہ فجر کے شہید نانا کا گھر تھا، مان تھا اس گاؤں کا، اور شہید کی بیوہ نے بھی یہ لاج خوب نبھائی تھی۔ وہ علاقے کی بچیوں کو قرآن کا سبق دیتی اور سلائی بنائی سکھاتی تھیں۔ فجر کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر گئے تو وہ بھی اس گاؤں میں اپنی نانی کے پاس چلی گئی، اور اس نیک عورت کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے لگی۔ شکیلہ نے ان کے ہاں آنا شروع کیا تو کچھ دوستی ہو گئی، پھر یہ کچھ بڑھ کر اچھی خاصی ہو گئی۔
तो सिर्फ शकीला ही उनके यहाँ आती थी। फिर उसकी दावत पर फजर भी उस इमारत में जाने लगी जो मलकों की हवेली कहलाती थी और स्याह पत्थरों से बनाई ये इमारत दूर ही से अपनी बुलंदी की वजह से नज़र आती थी और हैबत तारी करती थी। उस्तानी जी नहीं चाहती थी कि फ़जर हवेली में ज़्यादा आना जाना रखे, इसीलिए नवासी को हमेशा नसीहत की, देखना बेटी फ़जर, शकीला बहुत ऊंचे घर की बेटी है, इससे दोस्ती में भी कुछ फासला रखना कि दौलत के लिहाज से मलिक के घराने के सामने हमारी हैसियत हाथी और चूंटी वाली है। अभी 2 रोज़ पहले जब वो शकीला से मिलने गई थी तो वह नूरी को अहकाम जारी करने में मसरूफ़ थी और हवेली में गैर मामूली चहल पहल का एहसास हो रहा था। कोई आ रहा है बाजी? इसने पूछा। हाँ, महरोज़ मलिक आज शाम शहर से आ रहा है, अब तो रहेगा कुछ रोज़, छुट्टियाँ हो गई हैं ना। उसे शकीला ने बड़े शौक़ के साथ भाई की आमद के बारे में बताया और फजर की पलकें झुक गईं। मुबादा शकीला उसका नाम सुनकर इनसी आँखों में उभरने वाली चमक से मामले की तह तक न पहुँच जाए। अच्छा फजर, तुम ज़रा नूरी के सर पे खड़ी रहो, बावर्ची खाने का चक्कर लगा कर आती हूँ, देखो तो सही नूरी ने यखनी चढ़ाई है या अभी तक सुस्ती की मारी पड़ी है। वो ये कहकर आगे बढ़ गई और फजर उस कमरे में आ गई जो उसका था, जिसका नाम दिल के आसपास रहता था। नूरी सर झुकाए कामों में मसरूफ़ थी। फजर ने आगे बढ़कर मेज़ पर धरी एल्बम उठा ली। एक के बाद एक सफ़ा उसी की तस्वीरों से मुज़य्यन था और कैसा दमक रहा था। फजर ने चुपके से एक तस्वीर निकाल ली और बाएं हाथ में पकड़कर हाथ उस लंबी काली चादर के नीचे छुपा लिया जो वो ओढ़े हुए थी। ये उसकी ज़िंदगी की पहली चोरी थी और वह ऐसा करते ही सब घबरा गई थी। नूरी अब उसके करीब खड़ी शेल्फ में रखी एक किताब झाड़ रही थी, साथ साथ ज़ुबान भी चल रही थी, मगर फजर की तवज्जो उसकी बातों की जानिब ज़रा भी नहीं थी। पता है बीबी, ये जो मलिक महरोज़ है ना, उसने महरोज़ का नाम लिया और फजर की तमाम ऐसे बेदार हो गई। हाँ, क्या है? उसे नूरी वो पूरी दिलचस्पी के साथ पूछ रही थी। मैं कह रही हूँ बीबी, ये छोटा मलिक बड़ा अथरा है, अपने बाप और भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ। जवानी की सीढ़ी पर फजर से चंद बरस कबल कदम रखने वाली वो सेहतमंद होशियार लड़की बड़ी राजदारी और चुपके से बता रही थी, मगर कुरान का सबक देने वाली कढ़ाई सिलाई के टांकों में उलझे उस्तानी जी की नवासी की समझ में कुछ भी नहीं आया। वो वजाहत चाहती थी कि बात छोटे मलिक की, मगर उससे पहली शकीला चली आई। मैं अब चलूँ बाजी? वह हाथ में पकड़ी तस्वीर पर मजबूत गिरफ्त किए अब भाग जाना चाह रही थी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बैठ, तुझे गन्ने का रस पिलाती हूँ, बिल्कुल ताज़ा है। ना बाजी, अब तो मुझे जाने दो, घबरा कर पीछे हट गई। हैं, ये तुझे क्या हुआ? शकीला उसकी उड़ी सी रंगत देखकर हैरत से बोली। कुछ नहीं, मैं फिर आ जाऊँगी, इतना कहकर चली आई। हवेली से उस्तानी जी के छोटे से घर का फासला कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मगर उसका सांस फूलने लगा था। लगता था अभी पीछे से कोई आ जाएगा और कहेगा, मलकों की हवेली से जो चुरा कर लाई हो वह वापस कर दो। घर आती तस्वीर नीचे ऊपर रखे ट्रंकों में से नीचे वाले ट्रंक में छुपा दी और अभी लंबे लंबे सांस ही खींच रही थी कि उस्तानी जी कमरे में आ गई। वाह भाई, आज तो बड़ी जल्दी वापस आ गई, जबकि मुझे तो काफ़ी देर बैठने का कह कर गई थी। उन्होंने तो यूं ही पूछा था, मगर फजर को जरा मालूम हुई। वो नानी जी दरअसल उनके घर मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए शकीला बाजी सफाई करवा रही थी, फिर मैंने बैठ के क्या करना था। अच्छा, कौन आ रहा है? उस्तानी जी ने धागा क्रोशिया उठाए हुए दिलचस्पी से पूछा। उनका छोटा भाई आ रहा है, यानी छोटा मलिक। हैं? कौन? मलिक महरोज़, उन्होंने उंगली पर धागा लपेटते हुए कहा। उसने इस बात में सर हिलाया और नज़र पुराने से सब्ज़ ट्रंक की तरफ चली गई जहाँ उसकी तस्वीर रखी थी। लो भला बताओ। अरे पगली लड़की, महरोज़ मलिक भला कैसे मेहमान हो क्या? वो तो उसी घर का बेटा है, मालिक है, हवेली है। हाँ, पर कभी कभी तो आता है, एक तरह से मेहमान ही हुआ। कभी कभी आए या यहीं पर रहे, बाप का गरूर, भाई का बाजू तो है ना, और रहेगा। पढ़ने के लिए गया है, वापस तो उसे यहीं आना है। पता नहीं, वो इतना कहकर बाहर चल दी। क्या करने लगी हो? इस वक्त पीछे से नानी ने पुकारा तो कहने लगी, आटा गूंदने लगी हूँ, शाम बढ़ती जा रही है, सर्दी में इजाफा होने लगा है और जब ठंड ज़्यादा हो जाए तो मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। ये तो कोई अच्छी आदत नहीं है बेटी, बदल दो ये आदत, वरना काहिल हो जाओगी। एवं काहिल हो जाऊँगी, इतने तो काम करती हूँ, बस सर्दी में बिस्तर से निकलने को जी नहीं चाहता। हाँ, ये भी भला कोई काम है जो तुम करती हो? माँ तुम्हें चक्की पर आटा पीसना पड़ता है ना, जानवरों के लिए चारा काटती हो ना।
ना जानवरों के लिए चारा काटती हो, ना ही कुएं से घड़ा भर कर लाती हो, और ना ही तुम्हें मिट्टी से घर लेपना पड़ता है। कपड़े सीती हो तो वो भी फैशन से, जबकि हमने तो लालटेन की रोशनी में सुई धागे से कपड़े सिए हैं, और सिलाई भी ऐसी सुथरी और पायदार के फैशन का मुकाबला करवा सकती हो। वो ज़माना और था नानी जी, वो इतराफ़ ना कर सकी। हाँ ठीक कहती हो, वो ज़माना और था। इंसान तो ऐसे ही थे, 2 पाँव 2 हाथों वाले, और दिन रात काम करते थे। जब ही तो आज तक सेहत ठीक है। वो मुस्कुराकर कमरे से निकल आई, ये कहते हुए कि शुक्र है मैं उस दौर में पैदा नहीं हुई, वरना मेरी तो मत ही मारी जाती। उस्तानी जी मुस्कुराकर क्रोशिया धागे में उलझ गईं और वो छोटे से बावर्ची खाने में जाकर पेटी से आटा निकालने लगी। मगर ध्यान तो उधर हवेली में ही अटका हुआ था। सोच रही थी अब तक महरोज़ मलिक आ ही चुका होगा। वाह क्या शान है उसकी भी, कितना एहतमाम हो रहा था। मैं तो 10 वर्ष घर से बाहर गुजार कर लौटूं तो ऐसा इस्तकबाल नसीब ना हो। मगर इसका ही मतलब थोड़ी है कि नानी जी मुझसे प्यार ही नहीं करती। वो मुझे चाहती तो बहुत हैं, फिर क्या करें, पैसा नहीं है उनके पास। वो मेरे लिए सिर्फ मीठे चावल पका सकती हैं, सारे गांव में नहीं बांट सकती। और नौकरों की फ़ौज गेट पर खड़ी करना तो दूर की बात है, वो तो एक मुलाजिम भी नहीं रख सकती। मालिक तो बड़े पैसे वाले, बड़े ज़ोरावर लोग हैं। और तूने उन्हीं ऊंचे और ज़ोरावरों की चौखट पर जाकर दिल रख दिया है झल्ली। अपनी आवाज़ पर घबरा गई। मिट्टी की कनाली में आटा छानते छानते हाथ रुक गए, साथ ही बाह में खनकती चूड़ियाँ खामोश हो गईं। हाय रब्बा, कैसी गलती कर बैठी मैं। कहाँ वो आन बान वाला महरोज़ मलिक। ऊंची हवेली का मान, मैं उस्तानी जी की यतीम नवासी। ना माँ ना बाप, ना हवेली और जायदाद। इसे कभी बचपन में नानी जी से सुनी एक कहानी याद आ गई, जिसमें गरीब सी लड़की चांद को छूने की तमन्ना रखती थी और इसी ख्वाहिश में जान से हार गई थी। ये कहानी सुनाकर नानी जी हमेशा नसीहत करती थी, फजर बेटी, इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान को उन चीज़ों को पाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए जो बस में नहीं होती, और वरना अपना ही नुकसान होता है। और वो बड़े इत्मीनान से सर इस बात में हिला देती थी, जैसे सारी की सारी बात समझ में आ गई है, और इस कहानी का नतीजा सारी ज़िंदगी इसके नाजायज़ ख्वाहिशात के सामने बंद की सूरत में आता रहेगा। मगर महरोज़ मलिक जैसी ऊंची ख्वाहिश पाने के बाद वो ये कहानी बिल्कुल ही भूल चुकी थी, या शायद जानबूझकर फरामोश करनी ही थी। ऐन मुमकिन है उसे किसी मौजज़े के तौर पर आने का यकीन हो, या फिर वो अपने सच्चे इश्क के बलबूते पर उसे फ़तह करने का ख्याल रखती हो। फजर बेटी, आटा नहीं गूंधा गया अभी तक। अंदर कमरे में बैठी नानी ने पुकारा और ख़यालात की दुनिया से पलट कर फिर आटे में लग गई। ये काम निपटाया तो सोचा क्यों ना अभी से रोटी भी डाल लूँ। अपनी सोचों में खोकर अच्छी खासी तारीकी तो कर ही ली है। नमाज से पहले बावर्ची खाने का काम निपटा लूँ तो अच्छा है। ये सब सोचकर चूल्हे में आग जलाई और पालक की हांडी चढ़ा दी। ये गर्म हुआ तो तवा रख दिया और जल्दी जल्दी पेड़े बनाने लगी। नानी जी क्रोशिया छोड़कर नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने भी सारी सोचें झटक कर रोटियाँ दस्तरखान में लपेटी, पानी का जग भरा और हांडी से सब्ज़ी निकाल कर ये सब कुछ ट्रे में रखकर अंदर ले आई। वो नानी जी रात का खाना अमूमन इकट्ठे ही खाती थीं। जब तक उन्होंने सलाम फेरा, वो साथ के छोटे कमरे से अपना लिहाफ उठा लाई, जबकि नानी जी का उनके बिस्तर पर पहले से मौजूद था। वो शायद इसके बावर्ची खाने में जाने के बाद लिहाफ ओढ़े ही बैठी रही थी। ओह, फिर कहती हैं बड़ा दम है मुझ में, और ये सब काम की बरकत से है। अच्छा दम है। सरे शाम में लिहाफ ओढ़ कर बैठ गई, दिल ही दिल में हंसती रही। जूं जूं वक्त गुजर रहा था, हवा की खुनकी में इजाफा हो रहा था, और फजर को तो यूँ भी सर्दी बहुत लगती थी। इस माह जब नाना की पेंशन आई तो नानी ने इसके लिए पिन्नियाँ बनाने की ठानी थी। हालांकि इसने मना भी किया, छोड़ो नानी जी, क्यों फजूल में रकम ज़ाया कर रही हैं, मुझे नहीं है शौक़ ये पिन्नियाँ वगैरह खाने का। मगर उन्होंने कह दिया तुझे सर्दी बहुत लगती है और इसका यही इलाज है मेरे पास। फिर बड़ी मेहनत के बाद पिन्नियाँ बनाई गईं। उनका कसीला जायका उसे पसंद ही ना था। हज़ार नखरों के बाद कभी एक आध मुँह में डाल लेती। नानी जी ने जब यह हाल देखा तो बहुत नाराज़ हुई। आखिरकार वो सारी की सारी पिन्नियाँ आने जाने वाले बच्चों के काम आई, और नानी जी ने कह दिया था अब मुझसे सर्दी लगने की बात मत करना, कोई इलाज है मेरे पास इसका। मुझे नहीं अच्छा लगता ना इनका जायका, फिर कैसे खा लेती। दवा समझकर ही खा सकती थी, मेरी सुनता कौन है। वो नाराज़गी से कहती नहीं, मैं दवा समझकर भी नहीं खा सकती थी, इसलिए कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती मैं उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। हाय तौबा, इतनी इंतहा पसंद है तो ये तो बड़ी ही गलत बात है फजर बेटी। लड़कियों में बर्दाश्त और हौसले की कुव्वत होनी चाहिए।
ज़िंदगी में गर्म सर्द तो चलता ही रहता है। तेरी यही आदत रही तो बड़ी मुश्किल होगी। छोड़ो नानी जी, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मैंने तो सिर्फ उन मनहूस पिन्नियों की बात की थी जिनको बनाने का ख्याल पता नहीं किसने आपके दिमाग में डाल दिया था, और आप जाने कहाँ से कहाँ ले गई बात को। फजर बेटी, मेरी बात को हंसी में मत उड़ा, संजीदगी से गौर कर मेरी बच्ची। मैं जो कुछ भी कहती हूँ तेरी भलाई के लिए ही कहती हूँ। अच्छा जी, गौर करूँगी, इस वक्त नहीं कि बड़ी मसरूफियत है, कपड़े की सिलाई करना है मुझे। वो हंसकर टाल जाती। दिन तो बच्चों और सिलाई सीखने की शौकीन लड़कियों की आमदरफ्त में गुजर जाता। कभी वो इससे बात कर लेती, कभी उससे, और वो जो नानी के हुक्म पर घर से बाहर कम कम ही जा सकती थी। उन्हीं लड़कियों की वजह से हर घर के हालात से बाखबर रहती थी। भाभी नज़ीरा की अपनी सास से अनबन हो गई है। पीनों का शौहर अपनी माँ के मुकाबले में पीनों की ज़्यादा सुनता है। आज मलकों की हवेली में इतने बहुत से मेहमान आए हैं। नंबरदारों का लड़का 3 दिन से घर से गायब है। ये सारी खबरें उसे बचपन और जवानी के संगम पर खड़ी लड़कियां ही दिया करती थीं, और आज उन्हीं में से एक बता रही थी। पता है फजर बाजी, वो जो मलकों का बड़ा छोटा बेटा है ना, वही ऊंचा लंबा जवान, आज वो ज़ख्मी हो गया है। नज्जो के इतना कहने की देर थी कि हाथ में पकड़ी सुई जाने कैसे उंगली में उतर गई, बेख्तियार लबों से सी निकल गई। हाय बाजी, ध्यान से। नज्जो ने पढ़कर हाथ पकड़ लिया। तो कुछ कह रही थी नज्जो, उसे तो एक ही फिक्र खाई जा रही थी। हाँ जी, मैं बता रही थी, मलकों का छोटा बेटा शिकार खेलते हुए थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया था, और उसने गांव के हकीम जी से दवा नहीं ली, शहर से डॉक्टर बुलवाया। लो भला, ये भी कोई बात है। नज्जो को महरोज़ की हरकत कतन पसंद नहीं आई थी। हो सकता है नज्जो, चोट इतनी मामूली ना हो जितना तू समझ रही है। दिल अभी तक ठिकाने पर नहीं था। नहीं बाजी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप तो जानती हैं मेरा भाई मलकों का मुलाजिम है। वो इस वक्त छोटे मलिक के साथ था, उसी ने बताया है मुझे। क्या वाकई ज़्यादा चोट नहीं आई थी? एक मरतबा फिर उसने तस्दीक चाही। हाँ हाँ बाजी, कह तो रही हूँ। नज्जो ने ज़रा हैरत से उसे देखा। अच्छा, फिर तो इसे हकीम जी से दवा लेनी चाहिए थी। नज्जो के संदाज पर उसे वजाहत के लिए यही कहना पड़ा था। सेपहर होने से कुछ ही देर बाद उस घर में सन्नाटा छा गया। सब लड़कियां अपने अपने घरों को रवाना हुईं। उसके जी में कई बार आई कि नानी जी से शकीला बाजी के यहाँ जाने की इजाज़त लेकर हवेली हो आई। साथ साथ ये खदशा भी सर उठाता रहा कि अगर उन्होंने आंखों में किसी और ही उन्वान वाली कहानी पढ़ ली फिर क्या होगा। वो कितने ही चक्कर अंदर बाहर के लगा चुकी, मगर वो बात जो कहना चाहती थी कह ना पाई। यहाँ तक कि शाम हो गई और जाने का ख्याल ही अबस हो गया। बिस्तर पर लेटी वो रेडियो की सुई घुमा रही थी। जब ये बोल उभरे तो हाथ रोक दिया। तसव्वुर में महरोज़ मलिक का चेहरा आ जगमगाया। हाँ, वो भी ऐसे ही है। हर बोल के साथ उसका तसव्वुर गहरे से गहरा होता जा रहा था। ए फजर, देखती नहीं मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, बंद कर इसे। यूँ भी ये इबादत करके सोने का वक्त है, ना कि ये फजूल गीत सुनने का। कितनी मर्तबा मना किया है रात के वक्त रेडियो मत सुना करो, बल्कि अल्लाह रसूल का नाम लेकर सोया करो, तुम्हें असर नहीं होता। उन्होंने इतना कहकर फिर नीयत बांध ली और इसे रेडियो बंद करना पड़ा, वरना कितना अच्छा लग रहा था ये गीत। नानी नमाज से फारिग होकर बिस्तर पर आई तो वो अभी तक जाग रही थी। जहन में गीत के बोल बार बार उभर रहे थे। खुद भी यही गीत गुनगुनाने को जी चाह रहा था, पर ऐसा मुमकिन कहाँ था। उस तानी जी जो सिर्फ सुनने पर इस कदर नाराज़ हो रही थी, इसके खुद से गाने पर तो क़यामत ना उठा देती। पता नहीं कितनी चोट लगी है उसे। सुबह तो ज़रूर जाऊंगी मैं शकीला बाजी के घर, मगर किस तरह, कैसे कहूँ मैं नानी जी से। फिर घबरा गई। दिल का चोर परेशान करने लगा और आखिरकार वो उसी के बारे में सोचते हुए सो गई। अब तो कोई पाबंदी ना थी, ना नानी जी का खौफ था, ना ही दुनिया वालों की नज़रों का खटका। ख्वाबों की दुनिया में उसी का राज था। गीत पूरी आवाज़ से बज रहा था और वो महरोज़ के साथ बागों की सैर कर रही थी। झूले झूल रही थी। उसके बदन पर वैसे ही कीमती कपड़े थे जैसे शकीला पहना करती थी, और महरोज़ की हमराही में चलते हुए किसी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार भी ना थी। खुलकर कहकहे लगा रही थी, और यहाँ इस बाग में कैसे खूबसूरत रंग बिरंगे परिंदे चहचहाते थे। उसने महरोज़ से ता ज़िंदगी साथ निभाने का वादा लिया और अहद दिया कि ऐसी कैसी बातें भी बाकी थी। जब सपना टूट गया तो सुबह हो गई। उस तानी जी ने आकर जगा दिया। मुंदी मुंदी आँखों से उसने देखा, ये तो वही जगह है, वही 2 कमरों का मकान है जिसके सहन में सिर्फ कीकर और लसोड़े के दरख्त हैं, और कोई खुशनुमा पौधा यहाँ दिखाई नहीं देता।
اس कीकर और लसूड़े पर रंगीन परों वाले खुशगलो परिंदे नहीं चहचहाते, बल्कि कव्वे काएं काएं करते हैं और भूरी चिड़ियाँ रहती हैं। ऐसे क्यों बैठी हो? उठकर नमाज़ पढ़ लो। मैंने पानी गर्म करने को रख दिया था। वज़ू करके जल्दी से आ जाओ। सुस्ती के साथ बिस्तर से उतर आई। जब नमाज़ पढ़कर फारिग हुई, नानी पेटी से आटा निकालकर गोंदने में मसरूफ़ थीं। फजर ने उन्हें मसरूफ़ ही रहने दिया। खुद आंगन में झाड़ू लगाने लगी। ये काम उसे दिन में कई मरतबा अंजाम देना पड़ता था कि दरख्तों के पत्ते ज़रा सी हवा चलने पर भी गिरने लगते थे, ख़ास तौर पर देसी कीकर। उसके नन्हे मुन्ने पत्ते तो बहुत ही गंध मचाते थे। उसे याद था जब वो बच्ची थी तो उसे ये कीकर के पत्ते बड़े अच्छे मुफीद लगा करते थे, क्योंकि यही छोटे छोटे पत्ते गुड़िया घर खेलते चावल बनाने के काम आते थे। और जब आम की शाखों पर कच्ची कच्ची केरियां लगती तब इन बच्चियों की ईद हो जाती। आम के बहुत से पेड़ मलकों की हवेली में थे और उन तक पहुंचना कोई आसान भी ना था कि बड़ी मलकानी कच्चा फल दरख्त से उतारने की बड़ी मुखालफत करती थी। फिर भी शकीला नबीला कभी कभार अपनी अम्मा से चोरी ने कच्ची केरियां दे दिया करती थीं। बड़े मलिक साहब दिल के बड़े अच्छे और बड़ी मीठी ज़ुबान के मालिक थे। दौलत ने उनका दिमाग अर्श पर नहीं चढ़ाया था। वो इलाके के बड़े ज़िम्मेदार थे, मगर आज एक किसी छोटे का काश्तकार को उनके ख़िलाफ़ शिकायत पैदा नहीं हुई थी, जबकि इस इलाके के सयाहों से लेकर बड़े तंग थे। अब मलिक साहब का आसरा ना होता तो गरीब लोग सयालों की वजह से इलाका ही छोड़ जाते। उस्तानी जी शहीद की बेवा थीं, इस लिहाज से सारा गांव उनकी इज़्ज़त करता था। यहाँ तक कि मलिक साहब भी अपने ख़ास मुलाजिम को भेजकर खैर खैरियत मालूम करवाते रहते थे। हमेशा ये पैगाम भी होता कि अगर किसी शय की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताएं कि यह आपका हम पर हक़ है। मगर वो सब्र कनात की पुतली ज़रूरतें ही कितनी रखती थीं। दो ही तो जाने थीं, एक वो यतीम नवासी फजर। अलबत्ता वो इस मेहरबानी पर मलिक साहब का शुक्रिया अदा करना ना भूलती थी। नबीला की शादी पर बहुत से दुपट्टों पर उस्तानी जी ने अपने हाथों से बेलें बनाईं और इन दिनों बाकायदगी से हवेली जाती रहीं। फजर को ज़रा कम कम ही साथ लेकर जाती कि वो नहीं चाहती थी जहेज़ की चमक दमक और हवेली का दौलत की करिश्मा साजी से जगमग करता माहौल इसके मासूम दिल में ख्वाहिशात भरते, जिनका पूरा करना मुमकिन ही नहीं। किस्मत के हाल किसे मालूम। वही लड़की जिसे सेंत सेंत कर रखा था हवेली से दूर रखने की कोशिश करती आई थी। उसकी दोस्ती शकीला से हो गई और हवेली आना जाना मामूलात में से हो गया। हर चंद वो अब भी उसे ताकीद करती थी। और बेचारी उस्तानी जी को ये तो इल्म ही ना था कि वो कली जिससे गुलचें से बचाने के लिए हर दम निगरान रहती थी, चुपके चुपके खुद ही उनकी निगरानी के हिसार से निकली जा रही है। और उसकी मंजिल वहाँ है जहाँ तक पहुँच सिर्फ ख्वाबों में ही मुमकिन है। मलिक साहब लाख नेक दिल सही, पर यह कैसे मुमकिन था वो अपनी बिरादरी से बाहर अपने से बहुत नीचे के ख़ानदान की एक लड़की को बहू की हैसियत से इस खूबसूरत हवेली में दाखिल कर लेते। फजर बेटा, तुम्हें याद है ना चंद रोज़ पहले मैं साथ के गांव गई थी। आज उधर से चंद औरतें आई कि तुम मुर्गी पका लो, साथ साग भी कटवाना है। सोचती हूँ गर्मियों के लिए खुश करके रख लूँ। छोड़ो नानी जी, अभी बहुत दिन है गर्मी आने में। मैंने तो आज शकीला बाजी की तरफ जाना है। क्यों? बहुत ज़रूरी है उधर जाना। कितनी मरतबा मना कर चुकी हूँ, हवेली के ज़्यादा चक्कर मत लगाया करो। तुम्हें जाने क्यों समझ नहीं आती? ओहो नानी जी, मैं कब ज़्यादा जाती हूँ, इतने दिनों बाद तो जा रही हूँ। उस पर झुंझलाहट सवार होने लगी। आज तो वो ज़रूर जाना चाह रही थी। इतने दिन कहाँ, अभी तुम 2 रोज़ पहले ही तो होकर आई थी। नानी को खूब याद था। मैं जल्दी आ जाऊँगी नानी जी। सच घर में पड़े पड़े जी उकता जाता है मेरा। बस थोड़े दिनों की बात है बच्ची, फिर तो भरे पूरे घर में होगी। नानी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। चूँकि वो हौले से बोली थी और फजर की तवज्जो उधर थी भी नहीं, सो वो उनकी बात न सुन सकी। बावर्ची खाने की सफाई की, मिट्टी के चूल्हे पर कई रोज़ से चिकनी मिट्टी का लेप नहीं किया था और उस्तानी जी ये काम आज तो ज़रूर ही करवाने पर तुली हुई थी। आज वो भी बस में थी कि इन्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, सो खामोशी से ही काम किया। अंदर रखी बहुत सी मिट्टी खुश्क होने के लिए बाहर सहन में फैली धूप में डाली। परिंदों के लिए रखे गए मिट्टी के बर्तन का पानी बदला। फिर अपने कपड़े तब्दील करते कंघी चोटी से फारिग होके नानी जी से इजाज़त तलब करने आ मौजूद हुई। और वो मुर्गी कौन पकाएगा? उन्होंने ऊपर से नीचे तक जायज़ा लेते हुए कहा। आके पका दूंगी। मैं जानती हूँ तुम रुकने वाली तो हो नहीं, इतना फिर भी कहूँगी, बड़े लोगों से ज़्यादा दोस्तियाँ रखना ठीक नहीं होता।
संभल कर रहो, अपने जैसे लोगों में ही उठो बैठो तो बेहतर है। अच्छा नानी जी, अब चलती हूँ। उनकी बात सुनी अनसुनी करके सियाह चादर अच्छी तरह ओढ़ती बाहर निकल आई। यहाँ घर से निकलकर बाएं जानिब के कच्चे रास्ते पर हो ली। हवेली यहाँ से ज़्यादा करीब तो न थी, मगर अपनी बुलंदी की वजह से नज़र ज़रूर आ रही थी। फजर के कदम बहुत तेज़ी के साथ कच्चे पर उठ रहे थे। वो सोच रही थी, पता नहीं महरोज़ घर पे होगा या नहीं, और अगर घर पर हुआ तो भी मैं कौन सा उससे मिल सकूँगी। बस एक नज़र देख लूँ, मेरे लिए तो यही बहुत है। रास्ते में शादा मिली, अपने बच्चे को हकीम जी के पास लेकर जा रही थी। खाने पर कपड़े धोने के लिए जाने वाली भाभों से मुलाकात हुई। चंद बच्चों ने पहचान कर सलाम किया और आखिरकार वो इस इमारत के बड़े फाटक तक पहुंच ही गई जहां वो रहता था। अंदर दाखिल होने से पहले गहरा सांस लिया, खुले फाटक से अंदर कदम रख दिया। सामने का हिस्सा आमतौर पर मर्दों ही के इस्तेमाल में रहता था। इस वक्त भी इस बड़े से सहन में बड़े मालिक और चंद दूसरे मर्द, जो शायद मेहमान थे, बैठे चाय पी रहे थे और साथ साथ ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। सर की चादर कुछ आगे को खिसका कर अंदर वाले हिस्से की जानिब आ गई। शकीला बाजी कहाँ है नूरी? इसने चावलों का ढेर चुनती लड़की से पूछा। अंदर, अपने कमरे में। नूरी उसे देखते ही दोस्ताना मुस्कुराहट से बोली, फिर उसके आगे बढ़ जाने के बाद दोबारा अपने काम में लग गई। फजर के दिल में आई कि उससे पूछे, सुनो, अब महरोज़ मलिक कैसा है? उसके ज़ख्म ज़्यादा गहरे तो नहीं? फिर हिम्मत ही ना हुई, चुपचाप अंदर आ गई। शकीला कमरे में अकेली नहीं थी, किसी के साथ बातें कर रही थी। दूसरा कौन था वो समझ ना सकी, क्योंकि शकीला एक तवातुर से बोल रही थी और दूसरी हस्ती बिल्कुल खामोश थी। उसने पर्दा गिरे दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से शकीला की आवाज़ आई। फजर पर्दा हटाकर सामने आ गई। ऐन सामने कुर्सी पर महरोज़ मलिक को बैठे देखकर पर्दा हाथ में ही रह गया। चूँकि वो इसी की जानिब देख रहा था तो वो नज़र न उठा सकी। फर्श पर निगाह जमाए बुत की मानिंद खड़ी रही। रुक क्यों गई फजर? आगे आओ ना, ये उस्तानी जी की नवासी है। उसने पलटकर अपने भाई की मालूमात में इजाफा किया। कौन उस्तानी जी? वो शुरू ही से शहर में रहा था, समझ ना पाया। अरे मोहम्मद वली शहीद की बेवा को तुम नहीं जानते? हैरत है। आओ ना फजर। फिर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। फजर पर्दा छोड़कर हौले हौले कदम उठाती शकीला के करीब धरे मोढ़े पर जा टिकी। बड़ी हिम्मत से काम लेकर एक हल्की सी नज़र उस पर डाली और देखकर तसल्ली हुई कि वो हाथ में दवा लगी थी, पट्टी वगैरह नहीं की गई थी, और इसका मतलब था चोट ज़्यादा गहरी ना थी। छोटे मलिक, साईं बुला रहे हैं आपको। मुलाजमा की इत्तला देने पर वो उठ खड़ा हुआ और जैसे कमरा तारीख हो गया। मेरा ही भाई जब भी आता है ना, हवेली में रौनक उतर आती है। बड़ा लाडला है हम सबका। शकीला के लहजे में बड़ी बहनों वाला प्यार हलकौरे ले रहा था। फजर क्या कहती, चुप बैठी रही। ये और बात कि इसका जिक्र बहुत अच्छा लग रहा था। ये तस्वीर देख रही हो? कहो कैसी है ये लड़की? शकीला ने हाथ में पकड़ी तस्वीर इसके सामने करते हुए पूछा। फजर ने देखा किसी शहरी लड़की की तस्वीर थी जिसके बाल शानों तक कटे हुए थे, दुपट्टे से बेनियाज, बड़े खूबसूरत अंदाज में मुस्कुरा रही थी, और इसकी आंखों की जगमगाहट तस्वीर में भी साफ महसूस की जा सकती थी। बहुत सोहनी है ये, पर है कौन? फजर ने बड़ी इश्तियाक के साथ पूछा। साइमा है इसका नाम। मेरे भाई महरोज़ को दिलो जान से भाग गई है। कहता है शादी करूँगा तो सिर्फ साइमा से। उसे लगा जैसे दिल भग से उड़ गया। धुआं धुआं, गाढ़ा सिया धुआं, जिसमें सांस लेना मुश्किल होने लगा। अंदर बाहर सब झुलसने लगा, और इसकी कैफियत से बेखबर शकीला कह रही थी, बाबा जी भी राज़ी हैं। कहते हैं ऊंची ज़ात वाले हम पल्ला लोगों की लड़की है। अपनी बिरादरी नहीं तो क्या हुआ, अपने लाडले बेटे की बात ज़रूर मानूंगा। और हाँ सुन फजर, अगले हफ्ते जमील भी गांव आ रहा है। उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है ना। फुप्पी जी परसों आई थी तारीख मांगने। अगले माह चांद की 14 तारीख रखी है बाबा ने। शकीला अपने मंगेतर का जिक्र करते शर्माई, मगर बात पूरी कर गई। बहुत बहुत मुबारक हो शकीला बाजी। उसने तमाम हिम्मतें मुज्तमा करके बमुश्किल ये चंद अल्फाज अदा किए। खैर मुबारक। और ये मैं तुम्हें कहे देती हूँ, मेरे दुपट्टों पर गोटा तुमने लगाना है। और देख, मेहमानों की तरह मत आना। मैं तो कहती हूँ माइयों के रोज़ से ही इधर आ जाना, और फिर शादी के बाद ही जाना है। पर तो इतनी देर से चुप चुप है, तबीयत तो ठीक है ना? आखिरी फ़िक्रा बोलकर शकीला ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। नहीं बाजी, कहाँ ठीक है तबीयत। असल में मैं हकीम जी की तरफ दवाई लेने के लिए जा रही थी। सोचा तुमसे खैर खैरियत मालूम करती जाऊँ। रात से सर में शदीद दर्द है, शायद ठंड लग गई है।
अच्छा ख्याल रखा करो अपना, और देखो मेरी बात भूलना नहीं, शादी से पहले ही इधर आ जाना। ये तो कुछ मुश्किल है बाजी, देखो ना नानी जी बेचारी अकेली कैसे रहेंगी। ओहो, तो इन्हें भी साथ ले आना, हम पर दो बंदों का बोझ थोड़ा होगा। मेरा बाप तो कई 100 आदमियों को महीनों रोटी खिला सकता है। शकीला के लहजे में गरूर दर आया और फजर को ये बात अच्छी नहीं लगी, सलाम करके चली आई। कितने शौक़ से गई थी, मगर अब कैसा अंधेरा मच गया था इसके अंदर। वो जिसके इसने दिन रात पूजा की और किसी को चाहता है, अनकरीब अपनी चाहत को जीत कर इस गांव में भी ले आएगा। हाय फजर, तो मर जाएगी, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। घर आने तक वाकई सर में दर्द होने लगा और बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभालती कदम उठाती घर की दहलीज तक आई थी। सिपारा पढ़ते हुए बच्चे तो जा चुके थे, अब सिलाई कढ़ाई सीखने वाली लड़कियां सहन में बैठी धूप लेने के साथ साथ बातें करते हुए काम भी करती जा रही थीं। इसे आते देखकर ज़ोरदार सलाम किया। फिर कलसूम करीब आकर बड़ी राजदारी के आलम में अंदर कमरे में बैठी चंद मेहमान ख़वातीन के बारे में बताने लगी। और ये भी उस्तानी जी उसे बुलवाने के लिए किसी लड़की को भेजने ही वाली थी। फजर ने इस बात पर कोई भी तासुर दिए बगैर चादर तय करनी शुरू कर दी। यहीं चारपाई पर बैठ के उसकी खामोशी को लड़कियों ने महसूस किया, इशारों ही इशारों में ताज्जुब का इजहार भी किया। इससे पहले कि फजर से कुछ पूछती, उस्तानी जी सहन में आ निकली। तुम कब आई फजर? मामूल से कहीं ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, यूं ही बैठी अदवाइन से खेलती रही। चलो उठकर अंदर आ जाओ, मेरी चंद मिलने वालियाँ आई हैं, उन्हें सलाम करो। तब उसे उठना ही पड़ा। कमरे में आकर देखा 3 औरतें थीं, 2 बड़ी उम्र की और एक इससे चंद ही बरस बड़ी होगी। खूब मेकअप किया हुआ, जेवरात से लदी फंदी, शौक शौक से कपड़े पहने हुए लगता था नई नई शादी हुई है। इसके सलाम का जवाब तीनों ने बड़ी मोहब्बत से दिया और इससे इधर उधर की छोटी छोटी बातें करती रही। उसका जी तो एक लफ्ज़ भी बोलने को नहीं चाह रहा था, मगर मारे मुरव्वत के जवाब देती रही। नानी अम्मा ने चाय के साथ उनके लिए बतौर ख़ास हलवाई की दुकान से ताज़ा बर्फ़ी नमक पारे मंगवाए और खाने पर भी रोकती रहीं। वो फिर आने का कहकर उठ खड़ी हुई। नानी जी को भी अपने यहाँ आने की ज़बरदस्त ताकीद की और फजर को झूठे मुँह भी आने की दावत नहीं दी। और ये तो बाद में पता चला, वो तो इसके रिश्ते के लिए आई थी। एक लड़के की माँ थी, एक खाला, और वो जो लड़की सी थी वो भाभी थी। नानी अम्मा पिछले महीने जो अपनी सहेली के यहाँ जाने का कहकर साथ के गाँव गई थी, तो वो इन्हीं के यहाँ गई थी। लड़का छोटा मोटा ज़िम्मेदार था, कुनबा भी कोई ख़ास बड़ा ना था। नानी जी को तो ये रिश्ता दिलो जान से पसंद आ गया था। अब वो लोग फजर को देखकर अपनी बेपनाह पसंदीदगी का इजहार भी करके गए थे। मारे खुशी के उस्तानी जी के तो पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे। अगर ये लोग 1-2 रोज़ पहले आ जाती हैं तो शायद फजर बहुत वावेला मचाती। अब तो बिल्कुल चुप थी, ना खुशी ना गमी, बेहिसी की कैफियत तारी थी। 1-2 बार दिल में आई ज़रूर कि नानी से कह दे मुझे शादी नहीं करना, मगर इन्हें इस कदर खुश देखकर हिम्मत ही ना पड़ी। रात जब वो बिस्तर पर गुमसुम लेटी थी तो नानी जी कब से बहुत संभाल कर पेटी में रखा अटैची केस खोले बैठी थी और चमचम करते कपड़े निकाल निकाल कर देख रही थी। ये जोड़ा मैंने आपा जी से कहकर मंगवाया था और ये भाभी ज़ैनब को पैसे देकर शहर से मंगवाया था जब वो अपनी बेटी का जहेज़ ख़रीदने शहर गई थी। मगर फजर को इन सब बातों से ज़रा भी दिलचस्पी न थी। इसके कानों में बार बार शकीला के अल्फाज गूंज रहे थे, आंखों में साइमा की सूरत बैठ गई थी। नानी जी पता नहीं क्या कुछ बताती रहीं और इधर करवट बदल कर लेटी आंसू बहाती अपनी मासूम मोहब्बत के लुटने का मातम करती रही। ए फजर बिटिया, सो गई क्या? नानी ने कितने चाव से सब कुछ बताने के दौरान पुकारा था। जवाब में उससे बोला ही नहीं क्या। नानी चीज़ें समेट कर अपने बिस्तर पर आ लेटी। शकीला के गाने शुरू किए गए और इधर इसके ब्याह की तारीख रखी गई। ठीक 2 महीने बाद उसे सरवर की दुल्हन बनकर नानी जी का आंगन छोड़ जाना था। उसने खुद तो ये बात किसी को नहीं बताई, छुप सकती थी भला। उस्तानी जी ने खुद ही आए गए के सामने बड़ी खुशी के साथ ये जिक्र किया और यूँ बात एक से दूसरे घर होती सारे गांव में फैल गई। शकीला के बार बार इसरार पर जब वो हवेली आई तो वो आज भी महरोज़ मलिक के साथ बातों में लगी हुई थी। फजर के अंदर सन्नाटे होकने लगे। शकीला इस पर नज़र पड़ते ही सीधी इसकी जानिब लपकी। अरे फजर, बड़ी ही मीसनी है तो, तेरी शादी की तारीख भी रखी गई, तूने मुझसे कहा ही नहीं। क्यों छुपाए मुझसे? लेकिन देख लो, हमें भी सब खबर हो गई है कि 2 माह बाद तुम्हारी शादी है। क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने?
اور فجر مہروز ملک کے سامنے ہی اپنی شادی کا اس قدر تذکرہ سن کر گھبرا گئی۔ پہلی بار اس ذکر پر ہلکی سی حیا کی لالی اس کے چہرے پر اتر آئی، اور وہ جو زردی پھیلی تھی اسے چھپانے کو یہ ننھی سی لاٹ ناکافی تھی۔ استانی جی اس کے جہیز کی تیاریوں میں مصروف ہو چکی تھیں۔ بہت سے کپڑے سلنے والے تھے، کسی پر ستارے ٹانگ کے تو کوئی کڑھائی کے ارادے سے رکھا تھا، مگر اس نے شکیلہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے دوپٹوں پر گوٹا ضرور لگائے گی، اور اپنے سارے کام چھوڑ کر وہ اس کے دوپٹے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ہرے دوپٹے کے کنارے پر چوڑا گوٹا اور کرن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے سامنے شکیلہ کا آسودہ چہرہ آ گیا۔ کتنی خوش تھی اپنی شادی پر، پتہ نہیں ہر کسی کے نصیب میں خوشی کیوں نہیں ہوتی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گود میں آ گرا۔ وہ شکیلہ کی جہیز کے کپڑے سجاتی رہی اور استانی جی اس کے کپڑوں پر محنت کرتی رہی۔ انہیں احساس تھا شکیلہ سے اس کی دوستی کا، جبھی تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ اس کے کاموں کو چھوڑ کر اپنے جہیز کو مکمل کرنے کی فکر کرو۔ ہرے کے بعد نیلا، پھر گلابی دوپٹہ مکمل کیا۔ جب سارا کام ہو چکا تو نانی جی سے شکیلہ کے ہاں جانے کی اجازت مانگی۔ بڑے موڈ میں بیٹھی اس کے جہیز کے ایک جوڑے پر ستارے لگا رہی تھی۔ جھٹ اجازت دیتی، یہ تاکید کرنا نہیں بھولی، جلدی آ جانا۔ اور اب اس نے زیادہ دیر حویلی میں رہ کر کرنا بھی کیا تھا؟ راستے وہی تھے، اونچی حویلی دور ہی سے دکھائی دے رہی تھی، اور وہ بھی شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا، مگر سارے جذبے، جوش، خوشی، امنگ اپنے آپ ہی مر گئے تھے۔ اب نہ دل اپنی اصل رفتار بھولا تھا، نہ پیر نئی ترنگ سے اٹھ رہے تھے، نہ ذہن میں نت نئی باتیں تھیں۔ ہونٹ بھینچے، پلکیں جھکائے، چپ چاپ حویلی کو جانے والے راستے پر چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی شکیلہ نے روکا بھی تو کام کا بہانہ بنا کر جلدی اٹھ کھڑی ہوں گی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، مگر اندھیرا ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ ابھی گاؤں کی لڑکیاں حویلی میں ڈھولک بجانے کے لیے آنا شروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے حویلی میں خاصی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے شکیلہ کے کمرے میں جھانکا، وہ خالی تھا۔ دالان میں آئی، خیال تھا وہاں کوئی نہ کوئی ملازمہ موجود ہوگی اور اس سے شکیلہ باجی کے بارے میں پوچھ لے گی۔ اوہ، تم آئی ہو! اچانک ہی مہروز ملک سامنے آ گیا اور اس کے ہاتھ میں دبے دوپٹے جیسے پھسلنے لگے۔ وہ مہروز سے شکیلہ کے بارے میں بھی نہ پوچھ سکی۔ آؤ، ادھر آ جاؤ، شکیلہ وہاں ہے۔ اس نے دائیں جانب اشارہ کیا اور وہ فوراً ادھر چل پڑی۔ قدموں کی چاپ بتاتی تھی وہ بھی پیچھے ہی آ رہا ہے، مگر یہ کمرہ تو خالی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی فجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاؤ، یہ دوپٹے مجھے دے دو۔ اس کے کہنے پر فجر نے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے اس کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹے لینے کے بعد دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملک صاحب، مارے حیرت کہ وہ اسی قدر کہہ سکی، یہ تمہارا انتظار مجھے کئی دنوں سے تھا۔ اسی طرح ہاتھ پکڑے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ بایاں ہاتھ پشت پر لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ شکیلہ باجی کہاں ہے؟ اب کہ اس کی آواز مارے خوف کے خاصی دھیمی اور پھٹی پھٹی تھی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ آگے بڑھا۔ فجر نے پنجرے میں قید ہو جانے والے پنچھی کی طرح واحد راستے کی جانب بے قراری سے دیکھا۔ تبھی نظر پڑی دروازہ صرف بھیٹ دیا گیا تھا، کنڈی بند نہیں تھی۔ مجھے جانے دیں چھوٹے ملک، چلی جانا، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ بڑی خباثت سے ہنسا۔ مجھے بہت جلدی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی کہ اٹل لہجے میں یہ جملہ بول گئی۔ اتنی فکر کی کیا بات ہے؟ میں تو تجھے بڑی جیدار سمجھا تھا، اتنی جلدی پسینے بھی چھوٹ گئے۔ نانی جی میرا انتظار کر رہی ہوں گی چھوٹے ملک۔ بے بسی کے شدید احساس نے آنکھ میں آنسو بہا دیے۔ اتنا مت سوچ دنیا والوں کے بارے میں، دل مضبوط کر، پھر 2 ماہ بعد تو تیری ویسی بھی شادی ہو جائے گی۔ اس جملے کو سن کر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اٹھا کر جلتے تندور میں پھینک دیا ہو۔ میں دنیا کی نظر میں عزت دار، حقیقت میں بے غیرت خاندان کی لڑکی نہیں ہوں ملک۔ میرا نانا شہید ہوا تھا اور میں جس کے نام پر ہوں اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتی ہوں۔ پوری آواز میں چلائی اور رکی نہیں، جھٹکے سے دروازے کی طرف بڑھی، کھولا اور باہر نکل آئی۔ پیچھے سے اس نے کچھ کہا تھا، شاید سکوں کا لالچ دیا تھا، یہ شادی کا پورا خرچ ادا کرنے کی بات کی تھی، مگر وہ مارے غصے اور رنج کے کچھ نہ سن سکی۔ حویلی سے گھر تک کا راستہ جیسے اس نے ہوا میں اڑتے ہوئے چند سیکنڈوں میں طے کر لیا۔ جب اپنی دہلیز پر پہنچی تو اتنی سردی میں بھی پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ نانی کمرے میں مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔
वो बावर्ची खाने में पीढ़ी पर बैठ गई। उसने महसूस किया उसका बदन बुरी तरह कांप रहा है, आंखें आप या बहे जा रही हैं। अगर जो मैं ना आ सकती, वो मुझे रोकने में कामयाब हो जाता, मुझ पे गालिब आ जाता, फिर क्या होता? लगता था हवेली में उसके सिवा कोई ना था। शायद ये मेरी सिपारा पढ़ाने वाली नेक फितरत नानी की दुआएं ही थीं जो मुझे सही सलामत वापस इस छोटे से घर तक ले आई हैं। अल्लाह, मेरे अल्लाह। हाथों में चेहरा छुपाकर बेहाल होने लगी। फजर, क्या बात है? इस तरह क्यों बैठी हो? दोनों वक्त मिल रहे हैं, खैर की दुआ मांगो। वो उसके करीब आकर झुकी और फजर उठकर उनके गले लग गई और जो ऊंची आवाज़ में रोना शुरू किया तो नानी घबरा गई। खैर तो है ना बेटा? तू शकीला से मिलने गई थी? वो बार बार पूछ रही थी, उससे बोला ही नहीं क्या। उन्होंने लाकर अंदर बिस्तर पर बिठाया, गर्म दूध अपने हाथों से पिलाया। अब भी वो बोली तो सिर्फ इतना, पता नहीं नानी जी क्या हुआ है, मेरा दिल अचानक ही घबराने लगा है। इसीलिए कहती हूँ शाम के वक्त घर से मत निकला करो। जाने कितने दरख्तों के नीचे से गुजरकर घर तक आई हो, मगर तुम सुनती ही कब हो। खैर घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतरी करने वाला है। मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, सोने की कोशिश करो। नहीं नानी, आप सो जाएं, अब मुझे नींद आने लगी है। उसने झूठ बोला कि लगता था अगर नानी ज़्यादा देर तक यहाँ बैठी रही तो दिल की घबराहट में वो सब कुछ बता जाएगी जो ना कहना ही बेहतर है। अगले कई रोज़ तक वो संभल ना सकी और इसे यूं गुमसुम देखकर उस्तानी जी परेशान हो गई। पहले हवेली जाने से मना किया करती थी, अब कहती जा फजर बेटी, हवेली का चक्कर लगा ले, वहाँ शादी के दिन करीब हैं, रौनक होगी, दिल बहल जाएगा। मगर उसे तो हवेली का जिक्र सुनते ही थरथरी सी छूटने लगती। जाना तो बड़ी दूर की बात थी। मेहंदी के रोज़ लड़कियां खुद इसे साथ ले जाने के लिए आईं, मगर उसने कह दिया मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, दोपहर को बुखार भी था, मैं इतनी देर भला कहाँ बैठ सकूँगी। और इस झूठ पर उस्तानी जी ने नवासी की जानिब हैरत से देखा। फजर, तूने गलत बयानी क्यों की पुत्र? लड़कियों के जाने के बाद उन्होंने पूछा। बस नानी जी, मेरा इन हंगामों से जी घबराता है। अगर मैं वहाँ चली जाती तो भी बैठ ना सकती, फ़ौरन वापस आ जाती, बस इसीलिए गई ही नहीं। अल्लाह खैर करे, मुझे तो तेरी फ़िक्र ही लग गई, पता नहीं क्या हो गया, तुझे किसकी नज़र लग गई? आप परेशान ना हो नानी, मैं ठीक हूँ, बस मेरा जी नहीं चाहता शोर हंगामे वाली जगह पर जाने को। शादी के रोज़ पूरी हवेली कैसे जगमग कर रही थी और देगे खड़कने की आवाज़ें, पुलाव, जर्दे, मुतंजन, कौरमे की खुशबुएँ आने वालों की भूख को चमका रही थी। बुलावा तो नानी और फजर का भी था। उसने सर में शदीद दर्द का बहाना बना लिया और नानी को भी रुकना पड़ा। थोड़ी देर के लिए ही चली जाती, शकीला को दुल्हन बने ही देख लेती। तो आपका जी चाह रहा है तो आप चली जाओ नानी, मैं तो नहीं जा सकती। मैंने जाके क्या करना है, मैं तो तुम्हारी खातिर ही कह रही थी। और उसने चेहरा लिहाफ में छुपा लिया। मेरी खुशियाँ तो हमेशा के लिए मर गई हैं, अब मुझे कभी खुशी नहीं मिलनी। उस्तानी जी उसके लिए पानी दम करवा कर लाई थी और उन्हें उम्मीद थी वो ठीक हो जाएगी, मगर ख्याल ही रहा। ज्यों ज्यों इसकी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, नानी जी इसके ख्याल से परेशान हुई जाती थी। अकेली जान बेचारी जहेज़ तैयार करती, कभी सफाइयाँ वगैरह करने में लग जाती। दित्तू से कहकर एक रेड़ी मिट्टी की डलवा ली थी। ख्याल था कि शादी से थोड़े दिन पहले सहन में ताज़ा मिट्टी का लेप करवाएंगी और एक बोरी चूने की भी मंगवाने का इरादा था, ताकि सारे घर में शादी से पहले सफ़ेदी हो सके। सिर्फ 20 रोज़ ही तो बाकी रह गए थे। जहाँ इन्हें फजर के बाद अपनी तन्हाई का एहसास सताता था, वहाँ इसका घर बस जाने की बेअंदाज़ा खुशी भी थी, और यही खुशी उनसे ढेर सारे काम करवाई जाती थी। फजर कमरे में थी और उस्तानी जी खुले आंगन में फैली धूप में चारपाइयाँ लगाए बच्चियों को क्रोशे की बेल बनाना सिखा रही थी। तब गांव के 2 बच्चे भागते हुए आए और बताया, उस्तानी जी, आपके घर मेहमान आ रहे हैं। कौन हैं? उन्होंने सर उठाकर पूछा। पता नहीं, 2 आदमी हैं, आपके घर का पूछ रहे थे। हमने बता दिया, बस पहुंचने ही वाले होंगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उस्तानी जी दुपट्टा संभालते उठ खड़ी हुई। पता नहीं उन आदमियों ने क्या बात कही कि वापसी पर लड़कियों को इन्हें सहारा देकर चारपाई तक लाना पड़ा। या मेरे खुदा, क्या कसूर हुआ मुझसे या मेरी यतीम बच्ची से? क्यों इतनी बड़ी आजमाइश है मेरे लिए? उनके आंसू झरझर बह रहे थे। लड़कियां पूछ पूछ कर थक गईं। बानो भाग कर अंदर गई और फजर को बुला कर लाई। नानी को यूँ रोते देखकर बेताबी से आगे बढ़ी। हाय नानी, क्या हुआ?
اس نے ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھ کر سخت پریشانی کے عالم میں پوچھا، ہائے میری بچی، یہ کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ میں نے تو انہیں بہت اچھے لوگ سمجھ کر تیری بات وہاں لگائی تھی، کیوں کر دیا انکار انہوں نے؟ فجر کے ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں آ گرے۔ بے شک اسے اس رشتے پر کوئی خوشی نہ تھی، مگر یہ تو نہیں چاہا تھا کہ بات ہی ختم ہو جائے، وہ بھی شادی سے 20 روز پہلے۔ میری اتنی نیک اور اچھی نانی، سارے گاؤں میں جب اس بات کا چرچا ہوگا تو لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ کون یقین کرے گا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا بڑھنے لگا، پیروں پہ کھڑا رہنا ممکن نہ رہا تو ہائے کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ فجر میری بچی، نانی نے اس کی حالت دیکھی تو اپنے آنسوں پوچھ کر اس کی جانب لپکی۔ ہائے، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ اس کے سامنے رونے کے بجائے اسے حوصلہ دینا ہے۔ انہوں نے ساری لڑکیوں کو گھروں کو جانے کی اجازت دے دی اور خود اس کے پاس زمین پر آ بیٹھی۔ رب کی رب جانے پتر، تو پریشان نہ ہو، اللہ بہتری کرے گا۔ اپنا دل کٹا جاتا تھا مگر وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ ان دنوں نانی نواسی کے لیے تو دن میں بھی رات ہو گئی، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یوں ہی صحن میں بیٹھی رہیں۔ گاؤں میں بات تو لڑکیوں کے ذریعے پھیل ہی چکی تھی، عورتیں آنے لگیں، جو بھی آتی صحن میں داخل ہوتی اسے گلے لگا کر بد نصیبی پر بیان کرنے لگتی۔ یہ صورتحال اسے مزید ہراساں کر رہی تھی، یوں لگتا تھا اب زندگی بھر اس کا کوئی حق نہیں رہا، وہ مر گئی ہے۔ نانی نے جو یہ صورتحال دیکھی تو سمجھداری سے کام لیتے اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا۔ اب جو بھی نئی عورت آتی اس کا پوچھتی، وہ کہہ دیتی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اور عورتیں استانی جی سے ہی ساری تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کے بعد افسوس کر کے چلی جاتی۔ مگر اس کے کان تو بند نہیں تھے، آوازیں سن رہی تھی اور جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ سارا دن یہ آنا جانا لگا رہا۔ نانی ان کی باتوں کے جواب دیتے ہوئے چور چور ہو گئیں۔ رات ہوئی تو نماز کی چوکی پر جا بیٹھی۔ پتہ نہیں اس بے تابی سے رو رو کر کیا دعا مانگی انہوں نے۔ فجر کی بھی ہچکی بن گئی، ساری رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اسے ڈراتی تھی کہ ایک دم سوتے سے آنکھ کھل جاتی اور مارے خوف کے پسینے چھوٹنے لگتے۔ صبح ہوئی تو یہ خیال پریشان کرنے لگا کہ اب عورتیں آنے لگیں گی، پھر وہی سوالات ہوں گے۔ نانی نے اسے بہلانے کو ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں چھیڑ دیں، پھر بولی، تجھے بیسن کی روٹی پسند ہے نا؟ آج میں تمہارے لیے بیسن کی روٹی ہی بناؤں گی۔ اور ان کے پیار پر اس کا جی بھر آیا۔ نانی چولہا جلانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب پہلا پیڑا بنا رہی تھی تو حویلی کی پرانی بوڑھی ملازمہ چلی آئی، انہیں سلام کیا، سیدھی اس کے پاس آ بیٹھی۔ فجر کا سر جھک گیا کہ وہ سمجھی تھی خران بڑھیا بھی افسوس کا اظہار کرنے چلی آئی ہے۔ میں تمہارے لیے ملک مہروز کا پیغام لائی ہوں، بڑی بھی رازداری کے عالم میں بولی۔ فجر چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی، بات غیر متوقع تھی۔ مہروز ملک نے کہا ہے میں نے وہ رشتہ ہی ختم کروا دیا ہے نخرے والی، جس کی عزت ہونے کا تجھے دعویٰ تھا۔ اب سنا کیا حال ہے؟ فجر کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ دکھ، شدید دکھ، تو یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ ادھر وہ جہاں دیدہ کہہ رہی تھی، چھوٹے ملک نے بتایا تو نہیں، پر میں سب جان گئی ہوں، مان لی ہوتی تو انہیں اس کی بات تو اتنا بڑا نقصان تو نہ ہوتا۔ جاؤ، چلی جاؤ، اب مت آنا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ جاتی ہوں، لیکن اگر چھوٹے ملک نے بھیجا تو ضرور آؤں گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تیرے چھوٹے ملک پر، خدا کی مار، کمینہ، ذلیل ہوگا ایک روز۔ جو کچھ تو نے چھوٹے ملک کے بارے میں کہا ہے میں اسے نہیں بتاؤں گی، کیونکہ مجھے تجھ سے ہمدردی ہے۔ تو استانی جی کی نواسی ہے اور میں نہیں چاہتی ملک اس خاندان کی عزت مٹی میں ملاتے۔ بڑھیا تو چلی گئی، اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اٹھ کر دروازے کے کھلے پٹ ہی بھیڑتے جو اسے بری طرح خوفزدہ کر رہے تھے۔ لگتا تھا ابھی مہروز ملک آ جائے گا اور اسے اپنے آہنی بازوں میں دبوچ کر لے جائے گا۔ آہستہ آہستہ دن پر دن گزرتے رہے۔ اس عرصہ میں شکیلہ کی خاص ملازمہ نوری اس سے ملنے آئی اور اسی نے بتایا کہ چھوٹے ملک کی پسند وہ لڑکی کل گاؤں آ رہی ہے۔ اپنا چھوٹا ملک بڑا خوش ہے، کہتا ہے پوری حویلی میں چراغاں کرواؤں گا اور دیگے چڑھواؤں گا۔ وقت بیت چکا تھا، اب اسے چھوٹے ملک کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ نوری سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ صدا کی روگی تھی۔ کچھ دیر بعد نوری اٹھ کر چلی گئی اور اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنے والی کل جو کبھی اس کی شادی کی تاریخ تھی، ہاں آنے والی کل ہی تو اسے دلہن بن کر سرور کے ساتھ رخصت ہونا تھا۔ مگر اب اس کا دولہا تو نہیں آ رہا تھا، البتہ اس کی خوشیاں لوٹنے والے کی محبت کل حویلی ضرور آ رہی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھر کر سر گھٹنوں پہ رکھ دیا۔
साइमा आने वाली थी और महरोज़ मलिक ने सारे घर में चरागां करवा दिया था। यह सब बड़े मलिक को पसंद तो नहीं था, मगर एक तो ये बेटा बड़ा लाडला था, फिर था भी तो बड़ा अथरा, इन्हें मानना ही पड़ा। वैसे शहर जाकर वो साइमा के वालिद से मिल चुके थे। शहर के अमीर कबीर लोग थे। उनसे मिलकर तो मलिक साहब को अपनी हैसियत कम लगने लगी थी और ये रिश्ता उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया था। अब एतराज़ था तो सिर्फ ये कि वो शादी से पहले यहाँ आ रही थी, मगर खैर चुप ही थे। फजर और नानी रात का खाना खा रही थी जब अचानक ही फजर हर तासुर से बेतासुर चुपचाप खड़ी। जब अचानक ही फ़ज़ा नामानूस शोर से भर गई और ये शोर बता रहा था कि ख़बर खैर की नहीं आएगी। या अल्लाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। नानी उठकर बाहर को लपकी। फिर उनकी घबराई हुई आवाज़ पर फजर भी सहन में निकल आई और देखा कि सारा आसमान स्याह काले धुएं से अटा हुआ था और चीखें बुलंद हुई जाती थीं। ये क्या हुआ नानी जी? फजर घबरा गई। लगता है कहीं आग लग गई है। नानी दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर से भागते दौड़ते कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। नानी ने दरवाज़ा खोलकर लड़के से पूछा। पता चला कि हवेली में चिराग जले थे और उन्हीं से आग लग गई है। बहुत से मेहमान भी हवेली में मौजूद थे। लोग निकालने में लगे हुए हैं, मगर आग बहुत ज़्यादा है। हाय अल्लाह! नानी ने घबराकर दिल पे हाथ रख लिया। जबकि फजर हर तासुर से बेतासुर चुपचाप खड़ी धुएं से स्याह होते आसमान को देख रही थी। नानी का तो बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह हवेली पहुंच जाए और एक एक को बाहर निकाल लें। दुआएं मांगती सारे सहन में चकराती फिर रही थी। नानी, सर्दी बढ़ रही है, अंदर आ जाएं। चुप कर लड़की, तुम्हें सर्दी की पड़ी है। उधर हवेली वालों का पता नहीं क्या हाल है। खुदा ही अपना फजल करे। मलिक बड़े अच्छे दिल के लोग हैं। ओहो, आपके यूँ इधर से उधर फिरने से क्या आग बुझ जाएगी? उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक चारपाई खींचकर दीवार के साथ लगाई और उस पर चढ़कर हवेली की जानिब भागते दौड़ते लोगों को देखने लगी। रहम, मेरे मौला रहम, देख तो फजर, यहाँ से भी शोले दिखाई दे रहे हैं। फजर वहाँ होती तो जवाब देती। वह तो लिहाफ ओढ़े कमरे में लेटी थी, मगर बाहर से उठने वाला शोर और आग की हैबत इस कदर थी कि नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। आग पर काबू रात के आखिरी पहर ही पाया जा सका। सुबह बच्चियाँ पढ़ने आईं तो उन्होंने बताया मलिक जी ने शहर से आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भी मंगवा ली थीं और उन्होंने आकर ही आग बुझाई, वरना तो लगता था सारे मकान इस आग की लपेट में आ जाएंगे। मगर ज़ख्मी भी हुए। और वो जो शहरी लड़की आई थी ना, जिससे छोटा मलिक शादी करना चाहता था, बुरी तरह जल गई है। रात उसे गाड़ी में डालकर शहर ले गए थे। ये खबर सुनकर अलसी साफ करती फजर के हाथ साकित हो गए। क्या बहुत ज़्यादा जल गई है? नानी ने परेशान होकर पूछा। जी उस्तानी जी, अम्मा बता रही थीं उसे बेहोशी की हालत में शहर लेकर गए हैं। वैसे चेहरा बच गया। बड़े मलिक साहब का भी हाथ जल गया, वो भी शहर गए हैं। एक और लड़की ने खबर सुना दी। हाँ उस्तानी जी, और जो वहाँ हवेली में नौकर थे ना, उनमें से ही बहुत ज़ख्मी हुए और सामान तो सारे का सारा राख हो गया। मेरा भाई बता रहा था कि कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बस बच्चों, अल्लाह से खैर ही मांगनी चाहिए, बाकी सामान का क्या है। मालिक पैसे वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे। दुआ करो खुदा सबको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। वक्त की रफ्तार कौन रोक सकता है? दिन तो गुजरते ही जाते हैं। गम शाह को मिले या गदा को, वक्त नहीं शामिल होता 2 घड़ी रुक कर। मलिक साहब फितरत के अच्छे आदमी थे। बुरे वक्तों में लोगों के काम भी आते रहे थे। यही वजह थी कि आजकल गांव पर सोग की कैफियत सी तारी थी। हवेली जिसके दरो दीवार पर आग अपने निशानात वाज़े तौर पर छोड़ गई थी, उसे फिर से मरम्मत करवाने का काम शुरू हो चुका था। गांव में नया फर्नीचर भी आ चुका था। हवेली के मकीन इसी गांव में वाक़े अपने एक दूसरे मकान में आर्जी तौर पर ठहर गए थे, जो गांव में बादामों वाले मकान के नाम से मशहूर था। असल में इस इलाके में बादाम नहीं लगते थे। ये ज़मीन ही इस फसल के लिए नामौजू थी। मगर इस हवेली में बड़े मलिक के दादा ने पूरे 5 पौधे बादामों के मंगवा कर लगवाए थे और वो लग गए। बस तब से ये बादामों वाला मकान ही मशहूर था। महरोज़ मलिक शहर ही में रुक गया था और सुना गया था कि साइमा की हालत अभी तक ख़राब चली आ रही है। मलकानी जी ने उस्तानी जी को दुआ के लिए भी कहला भेजा था और वो तो उनके कहने से पहले ही दुआ करती थी। शकीला आई हुई थी। उसने नूरी के हाथ फजर को आने का पैगाम भिजवाया। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर जब दूसरी बार नूरी बुलाने आई तब उसने सोचा कि महरोज़ मलिक तो शहर गया हुआ है। ऐसे में शकीला के पास जाने में कोई हर्ज भी नहीं। नानी से इजाज़त लेकर वो नूरी के साथ ही बादामों वाले मकान में चली आई।
पहले ये घर सिर्फ मलिक साहब के बाहर से आने वाले यार दोस्तों को ठहराने के लिए इस्तेमाल होता था। अब जबकि एक पूरा कुनबा यहाँ आबाद था तो हर तरफ चहल पहल का एहसास जाग उठा था। शकीला उससे नाराज़ थी। इतने बड़े सानहे के गुजर जाने के बाद भी वो ना आई थी। वो क्या कहती, क्या बताती, कैसे बताती? इससे भी कई गुना बड़ा हादसा तो इसकी ज़ात पर भी बीत चुका था। शकीला इधर उधर की बातें करती रही। वो ज़्यादातर खामोशी बैठी रही, उसकी बातें सुनती और हूँ हाँ करती रही। साइमा की हालत अभी तक ख़तरे से बाहर नहीं है और उसे देख देख कर महरोज़ का बुरा हाल है। सुबह से आया हुआ है, पता नहीं कितनी रातों का जागा हुआ है। मेरे भाई की लाल सुर्ख आँखें हो रही हैं। अब तक वो किसी न किसी तरह बैठी हुई थी। ये सुनकर महरोज़ मलिक भी इसी घर में मौजूद है। जी बिल्कुल ही ऊब गया और वो जाने का बहाना सोचने लगी। तो बैठ फजर, मैं अम्मा जी को ये चाबियाँ देकर आती हूँ। जाने कब वो यहाँ भूल गई। मोढ़े पर पड़ा चाबियों का गुच्छा देखकर शकीला ने उठा लिया और बाहर निकल गई। फजर भी उठ खड़ी हुई और इस कमरे से निकलकर वो घर जाने का इरादा लेकर दालान में आ गई। फजर, ये तुम हो? पुश्त से उभरने वाली आवाज़ बिलाशुबा महरोज़ मलिक की थी। वो रुकी नहीं बल्कि कदमों में मज़ीद तेज़ी आ गई। सुनो फजर, इसने पुकारा। फिर तेज़ कदमों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है फजर। मुझे यकीन है ये जो कुछ मेरे साथ हुआ ये उसी जुल्म का बदला है जो मैंने तुम पर ढाया है। मुझे अब पता चला है तुम एक नेक औरत की नवासी हो जिससे सारा गांव दुआ करवाता है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी साइमा के लिए दुआ करो। खुदा की कसम मैं सरवर के घर वालों को मना लूँगा। उन्हें बता दूँगा कि वो सारी गलत बातें मैंने कहलवाई थी और वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि लड़की अपनी इज्जत पर मर मिटने वालों में से है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मलकों का लाडला अथरा बेटा इस वक्त एक मामूली सी लड़की के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। ये वो मर्द था जो उस्तानी जी के मासूम पाकबाज नवासी के दिल का अचानक मकीन बन गया था। उसकी राह वह हर साथ तका करती थी और वह अनजान बेखबर गुजर जाता था। माफ़ कर दो ना, मैं वादा करता हूँ मैं सरवर के घर वालों को राज़ी कर लूँगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें लौटा दूँगा। तुम भी साइमा के लिए दुआ करो ना। महरोज़ मलिक, तुम्हारा हर गुनाह माफ़ हो सकता है। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ मगर ये नहीं भूल सकती कि तुम कातिल हो। तुमने मेरे सजन का कत्ल किया है। उस रोज़ दुपट्टा हाथ में लेने के बजाय मेरे बाजू पर हाथ डालकर तुमने मेरे महरोज़ मलिक को कत्ल किया था। मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ? वो खामोश खड़ी उसे देखते हुए सोचती रही और आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। तुमने उसे कत्ल किया महरोज़ मलिक, जो इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाला, दिलों को जीतने वाला जीदार था। महरोज़ सामने खड़ी गुमसुम लड़की को हैरत से देख रहा था। आंसू बहाई जा रही थी और मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। माफ़ कर दो, उसने बुत बनी लड़की के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या महरोज़ मलिक का कत्ल भी? कैसे तड़प कर उसने पूछा। दौड़ती हुई आगे बढ़ गई और वो बात सुनकर भी ना समझ सका। हैरान सा खड़ा लम्हा लम्हा दूर होती लड़की को देखता रहा, यहाँ तक कि वो गेट पार करके पीपल के दरख्त के पीछे गायब हो गई। ये कहानी तो कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़।